Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. अल्लाह ताला आप सबको खुशहाल रखे, आसूदा रखे और मुतमईन रखे। दुआ मांगते रहिए अल्लाह ताला से कि वो जल्द से जल्द हमें आसूदा और खुशहाल माहौल दोबारा से अता कर दें, आमीन। और हमें जल्द से जल्द कोरोना वायरस से निजात दें, इंशाअल्लाह। Students, now we have another class of rhythmic writing for lowercase and we are going to end it. आज हम lowercase letters A to Z का आज हमारी ending है, यानी हम इसको finish करेंगे इंशाल्लाह and we will approach इंशाल्लाह in next class हम नए उसके साथ फिर से हाजिर होंगे. So now I hope you all have done the homeworks which I have given in my last class. I hope you all have done and you all are learning instructions which are given for lowercase. क्योंकि हम आपका टेस्ट लेंगे तो we will give you instructions and you will आप instructions पढ़ने के बाद then you will write the letter. फिर आपको instructions पढ़ने के बाद उसके letters को आपको लिखना होगा. Is it clear class? So now we are going to learn here 4 lowercase letters. First letter is wo, second is x, the third has 3 sounds. Students, as you know, you have your phonogram class. आपने अपनी phonograms class को भी अच्छी तरह सुना होगा. So here it has 3 sounds. Yes, very good. Y, E, I. Y, yellow. E baby, Y I cry, है ना? इसमें 3 sounds आ गए. Last one is Z. आप लोगों ने बहुत सा phonograms इंशाल्लाह पढ़ा होगा and you will learn it. आप इसको जितना सुनेंगे ना, you will get it कि आपको sounds clearly सुनाई देंगे. Now let's come to write first letter W. Open your book, page number 21 and do with me. आप मेरे साथ कीजिए, बुक खोलिए अपनी and मैं आपको बोर्ड पे आपको बता रही हूँ and you will do with me. ठीक है? क्लास में आपने 2 लाइन्स करनी है और आपको होमवर्क में जो है वो रिमेनिंग लाइन्स जो हैं वो आपको करनी होगी. Now let's come to the letter W. This is initial upswing, slant down, round up, pull back, round up, tiny dip. Clear? Initial upswing, slant down, round up, pull back, round up, tiny dip. इंशाल्लाह पेंसिल से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बन जाता है. ठीक है. नेक्स्ट लेटर इज एस, एक्सरे, बॉक्स, 6 है ना. सो इट्स वेरी इजी टू राइट. इट्स left semicircle, right semicircle. Clear students? Left semicircle, right semicircle. इसको इस तरह नहीं बनाइएगा कि वो पहले एक बना के फिर दूसरा. You will connect your pencil. आपने इसको पेंसिल को कनेक्ट ही रखना है. देखिए कैसे. लेफ्ट सेमी सर्कल, पेंसिल आपकी अलग नहीं हो, इसी के साथ आपने करना है एंड राइट सेमी सर्कल. इज इट क्लियर क्लास? अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं, यूं करा और यूं करा. दिस इज रॉन्ग वे टू राइट एक्स. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन. इट हैज आई हैव टोल्ड दैट के इसके 3 साउंड्स हैं, य, ई, आई. So now we are going to make it initial upswing, pull down,
Initial upswing, pull down, curve up, slant down, narrow loop. ठीक है, ओके। Initial upswing, pull down, curve up, slant down to the bottom line, narrow loop। एक दफा और बना दूँ। Initial upswing, pull down, curve up, slant down to the bottom line, narrow loop। Is it clear, class? एक दफा और बना दूँ। Yes. Initial upswing, pull down, curve, देखें curve up, slant down to the bottom line, narrow loop। The last letter is Z, zebra, zigzag। अब देखिए, इसमें मैं आपको बताती हूँ, हमने वो पढ़ा था ना घड़ी। हमने थोड़ा सा मैं एक आपको आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल हियर, छोटा सा मैं यहाँ पे आपको शो करना चाहती हूँ। वो क्या है स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी अ क्लॉक, और उससे हेल्प हम ले सकते हैं। देखें इसमें क्या इन्होंने दिया हुआ है, स्टार्ट टू 10, स्टार्ट टू 10, स्टार्ट टू 10, कर्व टू 2, कंटिन्यू टू 6। ये इसका शेप आएगा। ठीक है, मैं एक दफा और बना देती हूँ। स्टार्ट टू 10, कर्व टू 2, कंटिन्यू टू 6, इस तरह होगा। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट completely. Start to 10, curve to 2, continue to 6, curve back sharply, round, narrow loop, tiny dip। फिर से बना देती हूँ। Start to 10, curve to 2, continue to 6, curve back sharply, round, narrow loop। Students, we have alhamdulillah done all 26 lowercase letters। आपको पता है ना कि लोअर केस लेटर्स जो होते हैं, यानी स्मॉल लेटर्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, फोनोग्राम्स कहलाते हैं, साउंड कहलाते हैं। ठीक है, ये इनके नाम नहीं होते, ये इनके साउंड्स होते हैं। So I hope you all will learn rhythmic writing for lowercase। आप उसको डे टू डे याद कुछ तो कर चुके होंगे, और जो आगे आपको काम मिल रहा है उसको आप याद करेंगे। You will make yourself enjoyable, और आपको बहुत मज़ा आएगा इसको जब आपको करेंगे। आप अपने आप को खुद भी टेस्ट लिया करें कि कोई आपने लिख लिया, या आप अपनी अम्मी से कहें कि आपको वो rhythmic writing lowercase लिख के दें, and you will make, उसको पढ़ते जाइए और उसके लेटर को बनाते जाइए लोअरकेस का। अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल हैव डन 26 लोअरकेस लेटर्स। नाउ यू विल हैव होमवर्क एज यूजुअल, जैसे आपको हम हमेशा पेज नंबर देते हैं कि आपने करना है। यू विल डू पेज नंबर 21 to 23, आपको बुक पे करना है। रिमेनिंग जो आपके बन गए होंगे, और आपने मेरे साथ क्लास में 2 लाइन्स किए होंगे, और अभी आप बाकी के जो हैं वो होमवर्क में कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हियर आई हैव आल्सो गिवन अ होमवर्क, कुछ अलग सा एक मैं दे रही हूँ। राइट A to Z इन योर नोटबुक। आपको A to Z जो है वो नोटबुक पे करना है, यानी कॉपी पे काम करना है। अब टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये काम बहुत ज़्यादा नहीं है। यू विल डू दिस वर्क इन योर गैप डेज, जिसमें आपके पास वीडियोस नहीं आती हैं, जैसे फ्राइडे और संडे। सो यू विल डू इट।
इसको आपने कॉपी पे करना। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कॉपी, हाउ यू विल डू इन योर कॉपी। Students, I hope you all have done page number 20, 21's exercise which I have given you last homework, and now this is your homework, page number 21 to 22 and page number 23। ठीक है, मुझे उम्मीद है यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आप लोग अपना काम वक्त पर करने के आदी हैं। नाउ आई एम शोइंग यू स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह यू हैव गॉट योर कॉपी। आपने कॉपी भी आपके पास होगी, 4 लाइन्स कॉपी है इंग्लिश की। ठीक है, यू विल राइट योर नेम हियर, ईयर नंबर, class, if you know your section you will write down, and English here, if you know your branch name so you will write complete name of branch। अच्छा, ब्रांच में बच्चे क्या करते हैं कि एरिया का नाम लिखते हैं, ये नहीं लिखना होता है, उसको लिखना होता है कि शाख सैयदना अबू बकर सिद्दीक, फिर इस तरह का ब्रांच आपको वो नाम लिखना होगा, या उस्मान गनी या खदीजतुल कुबरा, जो भी ब्रांच है आपकी, यू विल राइट योर ब्रांच नेम। स्टूडेंट्स, यू विल राइट सीरियल नंबर। देखें आप लोग के लिए पहली, यू आर गोइंग टू राइट फर्स्ट टाइम इन द कॉपी, आप लोग पहली दफ़ा काम करने जा रहे हैं कॉपी पे, सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छा करके पेश कीजिएगा। ठीक है, और कर्सिव में ही काम करना है। यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने लिखा है, यहाँ पे डेट मैंने अपने हिसाब से लिखी है, बट आपको जिस भी डेट पे काम मिलेगा यू विल राइट दैट डेट। और इसके बाद आपने ये लिखना है राइटिंग ऑफ A to Z, आपको जो भी पेज नंबर है आपका ये करना है। फिर आपने एक टाइटल पेज बनाना है, फर्स्ट टर्म 2020-2021 यू विल डू विद पेंसिल, शार्प पेंसिल हो, अच्छी उसकी शार्प की भी हो। अब ये मैंने लिखा है इकरा हैंड राइटिंग। स्टूडेंट्स, इस तरह मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है, इकरा जॉइंट हैंड राइटिंग 1, और नेक्स्ट पेज से मैंने ये काम आपको दिखाने के लिए कि यू विल डू इट लाइक दिस। एंड स्टूडेंट्स, यू कैन यूज़ ब्लू पेंसिल। ठीक है, और इफ़ यू वांट टू कलर इट, तो आप मैंने इसको थोड़ा सा शेडिंग कर दी है, और इसको अगर आप इस तरह लिखना चाहें ब्लू से, तो फिर इस तरह आप हेडिंग की शक्ल में लिख सकते हैं। क्लियर? सो यू विल डू लाइक दिस। स्टूडेंट्स, देखें मैंने इसको बिल्कुल ही एक प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, जंबल वे में इस तरह से गंदा गंदा नहीं कीजिएगा, साफ सुथरा काम कीजिएगा। यू शुड टेक डिस्टेंस बिटवीन 2 लेटर्स, हर लेटर के दरमियान स्पेस हो, साफ नीट काम हो, पूरा पेज आपके पास है। आई होप यू विल डू इट लाइक दिस। और इसी तरह फिर आपको आगे भी 2 पेजेस पे काम करना होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू राइट इन 4 लाइन्स। इस कॉपी पे भी आपको काम करने में आसानी हो जाएगी, बुक पे भी आपने काम किया। नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट इन कॉपी इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव डिलीवर्ड टुडे। मैंने आज आपको जो बताया, इसके पहले की क्लास में भी आपने जो सीखा, इंशाल्लाह आपने उसको अच्छी तरह से लर्न किया होगा, सीखा होगा हमसे। नाउ वी विल मीट इंशाल्लाह आवर नेक्स्ट क्लास। और एक बार ज़िलहज का महीना शुरू हो रहा है और हो गया है, तो आप लोग इसमें खूब एहतमाम कीजिए दुआओं का। ठीक है, और इसमें जो हमें सुन्नत के हिसाब से भी है, जो वाजिब है हम पे, उसको आप फॉलो कीजिएगा। जो पढ़ा जाता है तो आप देखिए और जानिए, क्योंकि अल्लाह से जितना जुड़ेंगे उतनी हमारी ज़िंदगी आसान होगी और ख़ूबसूरत होगी। दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी अमान में रखे, हम सबको अपनी अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।